سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کا امریکہ ایران مذاکرات کا انعقاد یقینی بنانے کا عزم، ایران کے مذاکرات میں شرکت یقینی بنانے کے لیے روابط جاری رکھنے پر بھی اتفاق۔ اسلام آباد ٹاکس کے دوسرے راؤنڈ پر غور کے لیے شہباز شریف کی صدارت میں اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس ہوا۔ وزیر داخلہ نے امریکی اور ایرانی سفیروں سے اپنی ملاقات پر وزیر اعظم شہباز شریف کو اعتماد میں لیا۔ اس تمام صورتحال پر ہم چلتے ہیں اسلام آباد میں، جہاں پر موجود ہیں سمیرہ خان اور دیگر نمائندگان بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ سمیرہ، مجھے بتائیں کیا تیاریاں چل رہی ہیں؟ تیاریاں اپنے حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں؟ بہت شکریہ اسلام آباد دوبارہ واپس آنے کا، اور اس وقت ایک بہت اہم اجلاس کی باز گشت ہے جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہوا ہے، اور اس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ پاکستان اپنے ثالثی کے کردار کو پوری نیک اور خلوص سے نبھا رہا ہے، نبھائے گا، اور یہی کوشش کی جائے گی کہ دنیا کو اسلام آباد سے ہی امن کی نوید دی جائے۔ اور وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا، اس اجلاس میں ان کے ساتھ بہت سی عام شخصیات جو ہیں وہ بھی شامل تھیں، اس اجلاس میں موجود تھیں، جس میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور دوسرے تمام تر متعلقہ وزراء اور اعلیٰ شخصیات موجود تھیں، اور یہی طے پایا کہ اور یہی اس حوالے سے بھی بات چیت ہوئی کہ آج امریکی وفد کے پہنچنے کی اطلاعات ہیں، جبکہ ایرانی وفد کے کل پہنچنے کی اطلاعات متوقع ہیں۔ ایران کی مذاکرات میں شرکت یقینی بنانے کے لیے روابط جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے امریکی اور ایرانی سفیروں سے ملاقات پر وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا۔ اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات کی کیا تیاریاں ہیں، اس حوالے سے بھی انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو اپڈیٹ کیا، اور مذاکرات کے لیے ایران اپنا وفد اسلام آباد بھیجنے پر رضامند۔ امریکی خبر رساں ایجنسی کے حوالے سے جو خبریں تھیں، یہ تمام تر معاملات بہت تفصیل سے زیر غور آئے۔ اس وقت میں سے قمر المنور بھی موجود ہیں۔ قمر سے سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ وزیر داخلہ محسن نقوی جو کہ اس وقت ایک پوائنٹ پرسن بھی ہیں، جن کی آج بہت اہم دو ملاقاتیں ہوئی ہیں، امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر اور ایرانی سفیر رضا امیری مقدم، ان سے تو قمر اس حوالے سے اگر کوئی تفصیلات آپ کے پاس ہیں تو وہ بھی بتائیے۔ وزیر اعظم کے اجلاس کی جانب بھی میں واپس اس کے بعد آنا چاہوں گی۔ دیکھیں، سیکیورٹی کے انتظامات تو پہلے سے کر لیے گئے تھے، لیکن اس کے بعد اب یہ الگ الگ دو ملاقاتیں کی وفاقی وزیر داخلہ نے جو امریکی سفیر ہیں ان سے، اور اس کے بعد ایرانی سفیر کے ساتھ، اور ان کو اس میٹنگ کے دوران جو ہے آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر اسلام آباد جو تھے وہ بھی موجود تھے، اور ایک بریفنگ بھی دی گئی ہے کہ کیا کیا سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں، کس طرح اس سیکیورٹی کا روٹ پلان بنایا گیا ہے، کیا کیا چیزیں کی گئی ہیں۔ اس سے قبل میں آپ کو بتاؤں تو یہ سلسلہ کافی پرانا، اس طرح جب وفاقی وزیر داخلہ ایران گئے تو وہاں پر بھی انہوں نے ایرانی حکام سے ملاقات کے دوران یہ بات کہی کہ ان کے لیے ایرانی افراد کی سیکیورٹی جو ہے وہ انتہائی مقدم ہے۔ یہی اسی چیز کو کیری فارورڈ کرتے ہوئے اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ وہ ملاقاتیں کر کے یہ تمام چیزیں طے کی گئی ہیں کہ سیکیورٹی کے کیا جو کنسرن تھے ان تمام کنسرنز کو دور کیا گیا ہے، اور ایک میپ چارٹ بنا کر ان کو بتایا گیا باقاعدہ کہ کیا کیا سیکیورٹی پلان جو ہیں وہ کیے گئے۔ صبح کے وقت یہ ملاقات پہلے امریکی سفیر سے ہوئی، وہاں پر بھی سیکیورٹی کے حوالے سے تمام چیزوں کو ڈسکس کیا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ سیکیورٹی کے کیا انتظامات، اور اس کے بعد دوسری ملاقات ایرانی سفیر سے کی گئی، اور اس میں بھی یہ تمام کنسرنز جو تھے ان کو بتایا گیا، اور اس میں بتایا گیا کہ یہ روڈ میپ ہے اور اس کے تحت یہ سیکیورٹی کے پلان جو ہیں یہ بنائے گئے ہیں، اور پلان جو ہے اب مکمل ہے۔ اب جیسے یہ لوگ آئیں گے اس کے بعد ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ بہتری کی طرف تمام معاملات جائیں گے۔ لیکن سیکیورٹی کے حوالے سے جو کنسرن تھے، آج وفاقی وزیر داخلہ نے جو سیکیورٹی کا کسی کے تھے یا it was just a routine matter to brief the diplomats؟ دیکھیں، جو وی آئی پی سیکیورٹی ہوتی ہے اس کے ایک پروٹوکولز ہوتے ہیں، وہ پروٹوکولز تو آلریڈی پورے ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان میں ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اس کو میٹ کرنے کے لیے وفاقی وزیر داخلہ ان حکام کو بھی ساتھ لے کے گئے جو ضلع انتظامیہ کے لوگ تھے، اس کے علاوہ پولیس چیف جو ہیں اسلام آباد کے، ان کو ساتھ لے کے کہ ان کنسرنز کو دور کیا جائے، اور جو یہاں پر سیکیورٹی پلان بنایا گیا خاص طور پر روٹس کے حوالے سے ان پہ ان کو اعتماد میں لیا جاتا ہے، اور ان کے جو کنسرنز ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ روٹ کے دوران جو ڈیوٹی، اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اسلام آباد میں جتنی بھی نفری تعینات ہوگی ان کو ایک اسپیشل پاسز ایشو کیے جا رہے ہیں، اور وہ پاسز جو ہیں وہ جس کے پاس وہ ہوگا وہی روٹ کی ڈیوٹی کر سکے گا۔ تو اس طرح کے تمام کنسرنز جو ہیں وہ ان کے تھے جن کو سیٹسفائی کر دیا گیا، اور انشاءاللہ یہ ملاقات اب ہوگی اور بڑے اچھے طریقے سے ہوگی انشاءاللہ، اسی توقع کے ساتھ کہ مذاکرات بہت اچھے ماحول میں ہوں۔ ہمارے پاس ٹائم کیونکہ کم ہے، مگر کوئکلی وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بہت اہم اجلاس کی صدارت کی، جس میں سینئر وفاقی وزراء، جن میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو کہ وزیر خارجہ
भी हैं वो मौजूद थे, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी मौजूद थे और उनके साथ मुतालिका अहम शख्सियात मौजूद थी हुकूमत से, और यही तय पाया कि फ़रीक़ैन के साथ रवाबित जारी रखे जाएंगे ताकि मुज़ाकरात जो हैं उनको उनके हतमी मस्बत और मंतकी अंजाम की तरफ लेके जाया जाए। पाकिस्तान अमन की पहचान था, अमन की पहचान है और रहेगा। इसी इस्लामाबाद से दुनिया को अमन की नवीद दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तमाम तर तफसीलात दी गई हैं वफाकी वज़रा की जानिब से कि आज दो अहम सफ़ीरों के साथ, जो कि दोनों मुताल्लिका फ़रीक़ैन के सफ़रा हैं इस पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में, नेटली बेकर अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रही थी, अमीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम जो है वो ईरान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उसके बाद अच्छी और मुस्बत ख़बरों का इंदिया आना शुरू हुआ कि ईरानी वफ़द कल पहुँचे, उनके पहुँचने की इतलात हैं। अमरीकी वफ़द आज रात से सुबह के जो अर्ली आवर्स हैं उसमें किसी भी वक्त वो पहुँच सकता है। इस्लामाबाद के रिपोर्टर कॉर्नर से, जो कि कुछ देर कबल अधूरा रह गया था, इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए हम आपके साथ मौजूद रहेंगे यहीं पर समा की छत से, इस्लामाबाद द पीस कैपिटल। बिल्कुल, थैंक यू सुमेरा। और सुमेरा और कमर हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। अब आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात के अगले दौर से मुतल्लिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। मुमकिना मुज़ाकरात की सूरत में तफसीलात का ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ईरान मुज़ाकरात के हवाले से ना ज़्यादा पुरुमीद है ना ही मायूस। ईरान की रेड लाइन्स और ईरानी मिसाइल प्रोग्राम को मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल करने से मुतल्लिक सवाल पर इस्माइल बकाई ने कहा कि हम बार बार ये चेक कह चुके हैं कि हम इसे मुज़ाकरात के मौजू के तौर पर ज़ेरे बहस नहीं लाएंगे। फिलहाल इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा या नहीं। जब भी इस बारे में फैसला होगा तफसीलात से आगाह किया जाएगा। दूसरी जानिब खबर यह है कि अमेरिका का अबने हुर्मस की नाकाबंदी खत्म करने पर गौर। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने दावा किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आबने हुर्मस की नाकाबंदी खत्म करने पर गौर कर रहे हैं। इससे पहले ईरान ने आबने हुर्मस की नाकाबंदी बरकरार रखने का अमेरिका की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया था। अब आपको ये बताएं कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में तैयारियां मुकम्मल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमेरिका और ईरान के सफ़ीरों से अहम मुलाकातें। मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए सिक्योरिटी इंतजामात से आगाह किया। अमेरिकी और ईरानी सफ़ीरों ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने पहले अमेरिकी सिफारत खाने में सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात की। पाक अमेरिका ताल्लुकात के फ़रोग और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला ने बताया, तमाम मेहमानों के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। तमाम पाकिस्तानी मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। मोहसिन नकवी ईरानी सिफारत खाने भी गए। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम को सिक्योरिटी इंतजाम से आगाह किया। तनाज़े के सिफारती और मुज़ाकराती चैनल से पायदार हल की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला का कहना था, ईरान के साथ दिहाइयों पर मुहित बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान चाहता है ईरान अमेरिका तनाज़े का हल मुज़ाकरात के जरिए निकले। तनाज़े का देर पर हल ही खित्ते के इस्तेहकाम और अमन का ज़ामिन है। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में सालिसी पर पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए तनाज़ात के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा और इसराइल की जारियत से ईरान और लबनान में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। ईरानी हुकाम के मुताबिक जंग के बायस होने वाली शहादतों की तादाद 3,375 हो गई है। शहदा में 495 ख़वातीन भी शामिल हैं, जबकि शहीद होने वालों में 18 बरस से कम उम्र के 383 अफराद भी शामिल हैं। लबनान को भी इसराइल के वहशियाना हमलों में शदीद जानी नुकसान उठाना पड़ा। लबनान में 2,290 शहरी इसराइली जारहियत के नतीजे में शहीद हुए हैं। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि ईरान और लबनान में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खौफनाक नुकसान पहुंचा। ईरानी एयरलाइंस के 20 तैयारों को शदीद नुकसान पहुंचा है, लेकिन ईरान के 95% एयरपोर्ट्स अब भी फाल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का काम भी जारी है। अब आगे बढ़ें और एक और अहम खबर आपको दें, वो ये कि चीनी सदर शी जिनपिंग और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राबता हुआ। चीनी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सदर शी ने कहा कि आबने हुर्मज़ में मामूल के मुताबिक आमदरफ्त बरकरार रहनी चाहिए। दोनों रहनुमाओं ने फौरी और जामे जंगबंदी और आबने हुर्मज़ के मामले पर मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर दिया।
चीन ने ईरानी कार्गो जहाज को कब्जे में लेने पर तशवीश का इजहार कर दिया। चीनी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा, मौजूदा सूरत हाल नाजुक मरहले में दाखिल हो गई है। उम्मीद है फरीकैन जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए जंगबंदी की पाबंदी करेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में चीन तामीरी किरदार अदा करेगा। रूस ने भी सालिसी की पेशकश कर दी। क्रेमलिन के तर्जुमान ने कहा, आलमी मईशत को मनफी नताइज से बचाने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। रूस ईरान के मामले में सालिस नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर रूस मुज़ाकरात में मदद के लिए तैयार है। खित्ते में देर पर अमन के लिए पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की काविशें काबिल सताइश हैं। लाहौर की ताजिर बरादरी भी खुश। समा लाहौर के ब्यूरो चीफ ज़ीशान बख्श इस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर फ़हीमुर रहमान सहगल के साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। जी ज़ीशान, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, ख़ित्ते में तेज़ी से जो तब्दील होती सूरत हाल है उस पर कारोबारी बरादरी एक गहरी नज़र रखी हुई है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर फ़हीमुर रहमान सहगल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। फ़हीम साहब, बताइएगा कारोबारी तबका इसे कैसे देख रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में जाऊँगा। आपको पता है कि बुनियादुल मरसूस एक ऑपरेशन हुआ था लास्ट ईयर, हम जब इंडिया के साथ हमारी जंग हुई थी, तो ये इस वक्त जो पाकिस्तान की सालसी है ना, उसका फॉलोअप ही आप समझ लें कि उस वक्त जो पाकिस्तान का पूरी दुनिया में एक इमेज बुलंद हुआ, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी फोर्सेस ने जो जिस तरह और हमारे ये जो अवाम ने मिलजुल के वो जंग लड़ी, उसने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में ना एक पाकिस्तान का एक इमेज बनाया। ये उसका फॉलोअप है। ये अल्लाह का शुक्र है कि जो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हैं उन्होंने रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी एटमी पावर है और इनमें विल है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, इनमें दुनिया को यानी दुनिया के मामलात को समझने की पूरी सलाहियत मौजूद है। तो ये जो टॉक शुरू हुई हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, देखें जब भी बातचीत शुरू होती है वो एक नशिस्त पे मुकम्मल नहीं होती। डायलॉग जब होते हैं उनमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और ये भी उसका हिस्सा है। आज भी आपने देखा होगा, कल तक सूरत हाल मुख्तलिफ थी, आज जो ईरान ने बयान दिया कि वो लोग नहीं आ रहे, तो एकदम हमारी लोकल स्टॉक भी क्रैश कर गई। डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट जो है ऑयल प्राइसेस पे भी आएगा। तो ये उतार चढ़ाव जो है, जब टेबल टॉक होती है, जब डायलॉग्स होते हैं, ये उसका हिस्सा है। पाकिस्तान का बिजनेस और इंडस्ट्री, अगर ईरान से हमें ऑयल और गैस फ्रीक्वेंटली मिलना शुरू होती है तो किस हद तक हमारी इंडस्ट्री इससे ग्रो करेगी और कितना कारोबार को फ़ायदा होगा? अब आप जब ईरान से आप अपनी गैस पाइपलाइन का जो हमारा उनके साथ एग्रीमेंट है उसको मैच्योर करने की कोशिश करें और दूसरी तरफ जो है अमेरिका से डायलॉग करके अपना जो टैरिफ है ना उसको मज़ीद कम कराएं। और इन सूरत हाल की कामयाबी के बाद पाकिस्तान में मुआशी हालात इंशाअल्लाह बहुत बेहतर होने जा रहे हैं और इस खित्ते में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अगले आने वाले सालों में एक बहुत बड़ी माशी ताकत के तौर पे सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौर चैम्बर के सदर ने वाज़े किया कि उम्मीद है जल्द ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। पाकिस्तानी मईशत पर मशरिक़ वुस्ता जंग के मनफी असरात। रवा माली साल के पहले 9 माह में मुल्क की बरामदात 8% कम हुई हैं। हुजम $2 अरब कम होकर 22 अरब 74 करोड़ डॉलर रह गया है। सिर्फ मार्च 2026 में गुज़श्ता साल की निस्बत बरामदात में 14% कमी रिकॉर्ड की गई। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक फूड और टेक्सटाइल समेत मुतादिद शोबों की बरामदात मुतासिर हुई। जुलाई ता मार्च 9 माह में फूड एक्सपोर्ट 34% गिरावट का शिकार हुई हैं। हुजम 3 अरब 80 करोड़ डॉलर रहा है। इसी तरह सिर्फ मार्च में ग़िज़ाई अजनास की बरामदात में 29.53% कमी आई। फलों की बात करें तो फलों की बरामदात में 44%, चावल 26% और सब्जियों की बरामदात में 79% कमी आई है। मार्च में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 7% गिर गई। माहाना हुजम तकरीबन 1 अरब 33 करोड़ डॉलर रहा, जबकि इब्तदाई 9 माह में टेक्सटाइल बरामदात 0.5% कमी के साथ 13.5 अरब डॉलर पर आ गई। आगे बढ़ें, आपको बताएं, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत ज़राई टैक्स के निफाज का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। कहते हैं कि टैक्स लगाने का इख्तियार सिर्फ असम्बली के पास ही है। ऐसे नोटिफिकेशन से पंजाब असम्बली का इस्तेहकाक मजरू हुआ है। ये अहम खबर है कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने ज़राई टैक्स के निफाज के एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत ज़राई टैक्स का निफाज का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। कहते हैं कि टैक्स लगाने का इख्तियार सिर्फ असम्बली के पास ही है। ऐसे नोटिफिकेशन से पंजाब असम्बली का इस्तेहकाक मजरू हुआ है। अहम खबर है ये, जिस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत ज़राई टैक्स के निफाज का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है।
पंजाब असम्बली इजलास में वुज़रा और पार्लिमानी सेक्रेटरीज की गैर मौजूदगी में डेप्यूटी स्पीकर बरहम ज़हीर इकबाल ने तंबीह करते हुए कहा कि अगर आइंदा वो ऐवान के बजाय लॉबी या कैफेटेरिया में हुए तो सार्जेंट एट आर्म्स को कहूँगा कि उठा कर लाएं। या हम खबर है, इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब असम्बली इजलास में वुज़रा और पार्लिमानी सेक्रेटरीज की गैर मौजूदगी पर डेप्यूटी स्पीकर बरहम हुए हैं। ये काम पकड़ा हुआ यहाँ पर आते हैं और लॉबी में बैठ जाते हैं, गप्पे लगाते हैं। आपका काम है कि आप मिनिस्टर्स को और आप मेंबर्स को बुलाएं यहाँ पर। ये 12.5 करोड़ आवाम के नुमाइंदों की ये असम्बली है। पूरा पंजाब के 371 मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर यहाँ पर बैठते हैं, अपना अपना यहाँ पर बिजनेस लेके आते हैं। जो भी क्वेश्चन है उसको पेंड कर दें, जो भी एडजमेंट मोशन है उसको पेंड कर दें। ये सारी चट्टी मियाँ मुश्तबा शुजा रहमान साहब के ऊपर पड़ी हुई है कि एक ऑनरेबल मेंबर की तरफ से अगर कोई यहाँ पर कोई बात अपने हलके की, कोई पंजाब के अवाम के हवाले से यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं लोग, अगर उन्होंने यहाँ पे बात की तो आपको जवाब देना चाहिए। आप क्यों भागते हैं? अगर आज के बाद इस तरह हुआ कि अगर कोई भी मिनिस्टर या कोई पार्लिमानी सेक्रेटरी अगर अपनी अपनी गैलरी में बैठा हुआ तो मैंने ये सार्जेंट को कहना ये उठा के लेके आएंगे हाउस में।